Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, in our last class we have completed chapter number 1, that was our introduction to Python. I already told you the demonstration that how we need to execute the script mode and interactive mode both. So student, do remember, whenever you are as a beginner working over to the Python, ideally you should prefer only the interactive mode, but if you are good and well known about the codes, then you just prefer the script mode. Am I right? And you know that key for interactive mode, you just need to write the code and just press enter. You will get execute the code directly and you will get the output. But if you are just working over to the script mode, you must need to first save the code, then only with the .py extension, then only you are able to run the code. Okay, so we are just going ahead. So today we are going to start chapter number 2, that is more on Python. In this chapter we will just work over to the statement, means we are just learn here in this chapter how we need to write the statement in Python. हम Python के अंदर statements means कोड किस तरह से करते हैं, ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं बच्चों. ठीक है, तो मैं Python आइडियली आप लोगों के लिए रेडी कर लेता हूँ. ठीक है, so shall we start? Okay, so while we are just working in the Python, we must need to specify the type of value which we are storing into the program. बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कंप्यूटर के अंदर हम डेली कोई ना कोई डेटा या तो स्टोर करते हैं या कोई ना कोई डेटा कंप्यूटर से रिट्रीव करते हैं. तो बच्चों जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा स्टोर करते हैं या कोई भी डेटा रिट्रीव करते हैं, तो उस डेटा का एक स्पेसिफिक टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप. एम आई राइट? ये जो डेटा टाइप होता है ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं कंप्यूटर में और किस टाइप के डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं. तो कुछ जो डेटा टाइप्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं. जैसे सपोज करो यू आर जस्ट गिविंग द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर डेटा, सो मीन्स योर डेटा टाइप इज इंटीजर. ठीक है, सो एक्चुअल में डेटा टाइप आर द वर्ड्स विच टेल्स कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा you want to store in the programming. The type of data value that can be stored in a variable is known as data type. आप किस टाइप के डेटा को पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के अंदर इंसर्ट करा रहे हैं वो बताने के लिए आपके कौन से उसे शो करने के लिए आपके पास क्या होता है, डेटा टाइप. The data type help you in classifying the different type of data values. Sir, what is the purpose of showing data types? Actually data types जो होते हैं बच्चों वो किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज में लिए जाते हैं, डेटा को क्लासिफाई करने में यूज में लिए जाते हैं. तो चलिए, हमारे यहाँ पर बेसिक 3 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स हैं जिनका इंट्रोडक्शन दिया गया है इस साल, और नेक्स्ट ईयर जब आप कंप्यूटर सब्जेक्ट या आईपी सब्जेक्ट लेंगे तो अदर डेटा टाइप्स भी हम फॉलो करेंगे जो कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे हेल्प करते हैं. ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर डेटा टाइप की, जिसे शॉर्ट में इंट बोला जाता है. और आप सबको पता होगा बच्चों व्हाट आर द इंटीजर्स. एक्चुअली इंटीजर्स आर द वैल्यूज. Integer are the numerical values which is either be positive or be negative. Okay, positive और negative whole numbers को we are asking integer numbers. तो integer numbers जो होते हैं बच्चों वो भी 3 टाइप के होते हैं, plain integers, long integers and boolean integers. ठीक है, प्लेन जो इंटीजर होते हैं उनकी जो रेंज दे रखी है यहाँ पर वो आप देख लीजिए, बहुत ही एक बड़ी वाइड रेंज है. लॉन्ग इंटीजर सपोर्ट्स द वैल्यू लाइज बियॉन्ड द रेंज ऑफ प्लेन इंटीजर. सपोज करो अगर आपको इस रेंज से भी बड़ी वैल्यू को अपने एज अ डेटा स्टोर कराना है प्रोग्रामिंग में, तो यू शुड ओनली यूज द long integers. And boolean integers are of 2 values, that is 1 and 0, in which 0 represent to the false and 1 represent to the true, as bool stands for boolean, and boolean data are of 2 type. One is 0, one is 1. 0 represent to false and 1 represent to true. Now the next data type is float. Float represent to the floating point values. बच्चों float in stands for floating point. Floating point मतलब decimal values. If you want to show the decimal values, then you should use float data type. Okay, and whenever you want to store the value which is character or text, then you will use the string data type बच्चों.
ओके, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक आ रहा है बच्चों। सबसे पहली बात होती है कि सर ये जो डेटा टाइप्स हैं क्या हमें स्पेसिफाई करना होता है डेटा डालने से पहले कि पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कौन सा होगा? नो बच्चों, पाइथन इज वेरी इंटरेक्टिव एंड वेरी दैट अट्रैक्टिव लैंग्वेज। इन दिस यू डू नॉट नीड टू शो द डेटा टाइप डिफरेंट दैट सेपरेटली। आपको डेटा टाइप सेपरेटली शो करने की जरूरत नहीं होती कि पर्टिकुलर वेरिएबल इज ऑफ विच डेटा टाइप। वेन एवर यू आर स्टोरिंग द डेटा टू एनी वेरिएबल इट ऑटोमेटिकली चेंजेस दियर डेटा टाइप। व्हाट आई एम सेइंग, जब भी आप किसी वेरिएबल के अंदर उस पर्टिकुलर वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं, उस पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं, उस वेरिएबल का जो टाइप है वो ऑटोमेटिक उसी डेटा टाइप का हो जाता है जिस डेटा टाइप की आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। अब मैंने क्या बोला है इसको मैं प्रैक्टिकली शो करता हूँ। उसको शो करने के लिए मुझे एक टाइप फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। व्हाट इज टाइप फंक्शन? बच्चों टाइप इज अ फंक्शन, टाइप इज अ फंक्शन। अब सबसे पहले बात होती है सर आप ये टाइप एक वर्ड है तो इसको फंक्शन क्यों बोल रहे हो? बच्चों कोई भी वर्ड पाइथन के अंदर फंक्शन होता है जब उसके आगे इस तरह से स्मॉल ब्रेसेस लगे होते हैं। अंडरस्टैंड? सर फंक्शंस क्या होते हैं? बच्चों फंक्शन वो वर्ड होते हैं जिनका एक स्पेशल पर्पस होता है। एम आई राइट? किसी स्पेशल पर्पस के लिए जिन वर्ड्स को यूज किया जाता है, या फिर आप ऐसे बोल लो वो वर्ड्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमारे फंक्शन कहलाते हैं। जैसे कि सबसे पहला है टाइप फंक्शन। नाउ क्वेश्चन इज सर यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए थे लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, क्या ये भी फंक्शंस थे? आप खुद देखो बच्चों, नो। इनके आगे ब्रैकेट लगे हुए हैं क्या स्मॉल? ऑब्वियसली नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये हैं डेटा टाइप्स। अब बात आती है सर ये फंक्शन टाइप। क्वेश्चन आता है कि सर फंक्शन टाइप जो फंक्शन है क्या इसके अलावा भी अदर फंक्शन है? बच्चों आप लोगों को याद हो अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक प्रिंट फंक्शन यूज करा था। आपने देखा था प्रिंट को चलाने के लिए मैं उसके जस्ट आगे स्मॉल ब्रैकेट लगाता था। तो व्हाट इज दिस? प्रिंट। प्रिंट इज अ फंक्शन जो कि क्या स्पेसिफिक वर्क करता है? आउटपुट डिस्प्ले करने का काम करता है। जैसे यहाँ पर मैंने प्रिंट में क्या डाला? श्याम। तो प्रिंट क्या करेगा? श्याम को डिस्प्ले करने का काम करेगा। एज श्याम इज अ स्ट्रिंग डेटा, आई एम जस्ट पुटिंग इट इनटू द डबल कोटेशन। बोला मैंने दोबारा से, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी आपके पास कौन कौन सा डेटा होगा, स्ट्रिंग डेटा होगा, तो आप उसे हमेशा या तो डबल कोटेशन में डालेंगे या सिंगल कोटेशन में डालेंगे। इंट और फ्लोट को विदाउट एनी कोटेशन आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने प्रिंट फंक्शन चलाया तो ऑटोमेटिकली ये शाम प्रिंट कर रहा है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंट फंक्शन? प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा या रिजल्ट। किसी भी डेटा या रिजल्ट को शो करने के लिए वी आर यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से एक टाइप फंक्शन है। टाइप फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल या डेटा की जो टाइप है वो डिस्प्ले करने का काम करता है। ओके बच्चों, चलिए एक बार टाइप फंक्शन देखते हैं और ये जितने भी डेटा टाइप है इनको कवर करते हैं प्रैक्टिकली। सामने देखिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखिएगा। मैंने सबसे पहले एक एक्स वेरिएबल लिया है बच्चों। ओके, ये मैंने एक्स वेरिएबल लिया है। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, ये मैंने एक्स वेरिएबल ले लिया बच्चों। इसके अंदर मैंने डाला 10। अब आप सबको पता है बच्चों 10 इज अ इंटीजर वैल्यू। एम आई राइट? अब देखिए बच्चों मैंने x के अंदर 10 डाल दिया, इसका मतलब 10 इज द वैल्यू, 10 इज द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन x। ओके, नाउ अब अगर मैं x वेरिएबल, अच्छा बताइए बच्चों क्या मैंने x वेरिएबल का डेटा टाइप शो करा था? इंट, फ्लोट, इंट, कुछ भी नहीं ना। अब एक बात बताइए, मैंने x वेरिएबल के अंदर कौन से डेटा टाइप की वैल्यू डाली है? यस, इंटीजर टाइप की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि इस x वेरिएबल का टाइप इंट हुआ या नहीं हुआ। तो गौर से देखिए बच्चों, मैंने प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन जो कि प्रिंट करने का काम करता है। अब मुझे क्या प्रिंट करना है? टाइप ऑफ x। गौर से देखिए, इसको लिखने का तरीका देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि सर आपने ये दो दो ब्रैकेट क्यों लगाए? बच्चों ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ये और ये किसका है? प्रिंट फंक्शन का। और प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है वो उसको प्रिंट कर देता है। तो मैंने उसके अंदर क्या पास कर दिया? टाइप फंक्शन। और टाइप फंक्शन के अंदर किसका डेटा टाइप? x का। तो गौर से देखिए, सबसे पहले क्या होगा? अंदर वाला फंक्शन वर्क करेगा, और अंदर वाला फंक्शन क्या है आपका? टाइप, जो क्या करेगा? x वेरिएबल का जो डेटा टाइप है ना उसको गेट कर लेगा, और गेट करने के बाद प्रिंट फंक्शन क्या करेगा बच्चों? उसको प्रिंट कर देगा। तो गौर से देखिए इस कमांड का आउटपुट,
ये देखिए बच्चों क्या आ रहा है, क्लास इंट, इसका मतलब x जो वेरिएबल है वो इंट डेटा टाइप का है। ओके, नाउ लेट आई एम जस्ट डूइंग वन मोर क्वेश्चन दैट एग्जाम्पल। लेट मैंने डाला y इज इक्वल टू 10.25। ओके, y की वैल्यू मैंने कितनी डाली है बच्चों, 10.25। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, गौर से देखिएगा, प्रिंट करके देखता हूँ किसको, y वाले वेरिएबल को। ओके, और उसके टाइप को, y वेरिएबल के टाइप को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो बच्चों फ्लोट आ रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि y इज द वेरिएबल इन विच आई हैव स्टोर्ड float type of value and float values are decimal values. Let I am taking another example z in which I am just storing Shyam. You know that Shyam is a string value. Okay, so I am just storing it, and again I am just printing the value, that type of z variable. It is showing str, stands for string. Understand बच्चों? प्लीज़ आप इसको एक बार घर पे चला के ज़रूर देखिएगा, ठीक है, मेरे वीडियो के अंदर देखकर। और यहाँ पर भी देखो बच्चों एक पिक्चर दे रखी है, फिगर नंबर 2.1, जिसके अंदर टाइप फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रखा है। आप प्लीज़ इसको चला के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इनपुट फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।